बच्चों अब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर के द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। द डेनिश केमिस्ट जोनास ब्रॉन्स्टेड and the English chemist Thomas M. Lowry gave a more general definition of acids and bases. According to Bronsted-Lowry theory, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion, and bases are the substances which are capable of accepting a hydrogen ion. In short, acids are proton donor and bases are proton acceptors. Consider the example of dissolution of NH3 in H2O represented by the following equation. NH3 accepts a proton and converts into NH4 plus, whereas H2O gives a proton and converts into OH minus ion. तो अमोनिया जो कन्वर्ट हुआ है ना NH4 प्लस में, वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? जिसमें एक H जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, वो एक कॉन्जुगेट एसिड है। और कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ है? जिसमें से एक H प्लस आयन निकला हुआ है, वो कॉन्जुगेट बेस है। The basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ion. In this reaction, water molecule acts as proton donor and ammonia molecule acts as proton acceptor and thus called Lowry-Bronsted acid and respectively बेस। कौन है बेस? अमोनिया। और एसिड का काम कौन कर रहा है? वाटर। In the reverse reaction, H plus ion is transferred from NH4 plus to OH minus. In this reaction, अगर यही रिएक्शन हम रिवर्सिबल कर दें, मतलब NH4 प्लस जब रिएक्शन करेगा OH माइनस से, तो क्या करेगा? वो एक H प्लस आयन OH को दे देगा। तो अब OH माइनस आयन क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस बन गया है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। और NH4 प्लस आयन क्या बन गया है? कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, क्योंकि वो H प्लस आयन दे रहा है। In this case, NH4 plus acts as a Bronsted acid while OH minus acted as Bronsted base. The acid-base pair that differs only by one proton is called a conjugate acid-base pair. Therefore, OH minus is called the conjugate base of an acid H2O and NH4 plus is called conjugate acid of a base NH3. If Bronsted acid is a strong acid, then its conjugate base is a weak base and vice versa. It may be noted that conjugate acid has one extra proton and each conjugate base has one less proton. Consider the example of ionization of hydrochloric acid in water. अभी हमने अमोनिया का देखी थी वाटर से रिएक्शन, अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की देखते हैं। HCl act as an acid by donating a proton to H2O molecule. कौन एक्ट कर रहा है? HCl तो है ही एसिड, है ना, वो पानी को क्या करेगा? H प्लस आयन डोनेट कर देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल ले लेता है H प्लस आयन, और देखो कैसे वो H3O प्लस में बदल जाता है, जो कि क्या है? कॉन्जुगेट एसिड था। और अभी आपने पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन की थी तो देखा था वाटर किसका काम कर रहा था? एसिड का। अब वो बेस का काम कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया ना, तो इट इज़ एक्टिंग एज बेस। अब वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है H3O प्लस। देखो एक H प्लस आयन एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर, और कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया कौन? HCl। और वो Cl माइनस क्या है? उसमें से एक H प्लस आयन निकला हुआ है, इसलिए वो कॉन्जुगेट बेस है। It can be seen in the above equation that water acts as a base because it accepts the proton. The species H3O plus is produced when water accepts a proton from HCl. Therefore, Cl minus is a conjugate base of HCl and HCl is the conjugate acid of base Cl minus. Similarly, H2O is the conjugate base of an acid H3O plus and H3O plus is the conjugate acid of base H2O. It is interesting to observe the dual role of water as an acid and as a base. In case of reaction with HCl, water acts as a base, while in case of ammonia, it acts as a acid. है ना, by donating proton. अब प्रॉब्लम देख लीजिए 7.12. What will be the conjugate bases for the following Bronsted acid? HF है, H2SO4 है और HCO3 माइनस है। तो सबसे पहले HF को देखो। मैंने आपसे बताया था कि एक H प्लस आयन कम होता है ना,
तो ये HF तो एक एसिड है, अब इसमें से H प्लस आयन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, F माइनस, तो वो ही क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। एक H प्लस निकाल दो बस। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से एक H प्लस निकाल दो तो क्या मिलेगा आपको, HSO4 माइनस। फिर आप HCO3 माइनस में से एक H प्लस आयन निकाल दो तो क्या बचेगा, CO3 2 माइनस, है ना। CO3 के ऊपर माइनस तो है ही, एक H और निकाल दोगे तो 2 माइनस हो जाएगा। द कॉन्जुगेट बेस शुड हैव 1 प्रोटॉन लेस in each case and therefore the corresponding conjugate bases are F minus, HSO4 minus and CO3 2 minus respectively. Write the conjugate acids for the following Bronsted bases. ये बेसिस हैं। अब एसिड बनाने हैं तो आप इसमें एक H प्लस आयन जोड़ दो, जैसे NH2 माइनस है तो इसमें जब एक H प्लस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, NH3, है ना। H प्लस जोड़ने से प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक H और आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। अब NH3 है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें एक H प्लस आयन जोड़ दोगे तो NH4 प्लस हो जाएगा। HCOO माइनस, एक इसमें H प्लस आयन जोड़ दो बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। तो इजी है बच्चों, बस एक H प्लस आयन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए एक अमोनिया है उसमें से एक H प्लस आयन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस, है ना। द स्पीशीज H2O, HCO3 minus, HSO4 minus and NH3 can act both as Bronsted acid and bases. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. वाटर तो अब भी आपने देखा कि कैसे एसिड का काम करता है, जब ये H प्लस आयन दे देता है ना, तो क्या बना देगा, ये OH माइनस में बदल जाएगा। और बेस का काम कब करता है, जब एक H प्लस आयन ले लेता है, H3O प्लस आयन बना लेता है, तो बेस का काम ये रहा। वाटर जो है कॉन्जुगेट एसिड का काम करता है, ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है क्योंकि इसमें उसने एक H प्लस आयन जो है वो ऐड कर रखा है अपने अंदर। ये कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि इसमें से एक H प्लस आयन निकला हुआ है ना। HCO3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, जिसमें एक H प्लस आयन ज़्यादा होगा, तो ये क्या है, H2CO3 कॉन्जुगेट एसिड है इसका। और CO3 2 माइनस में क्यों है ये कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इसमें से H प्लस आयन निकला हुआ है। HSO4 माइनस, इसमें एक H प्लस जोड़ दोगे तो H2SO4 बन जाएगा, एक H प्लस निकाल दोगे तो SO4 2 माइनस बन जाएगा। NH3, एक H प्लस आयन जोड़ दोगे तो NH4 प्लस बन जाएगा और एक H प्लस आयन निकाल दोगे तो NH2 माइनस बन जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस